हरे कृष्णा। आज का मेरा टॉपिक है इंडिविजुअलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी विल चैंट सम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 2, वर्स नंबर 12। ना तव एवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपाः ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। ना never, to but, eva certainly, aham I, jatu become, na never, asam existed, na it is not so, tvam yourself, na not, ime all these, janadipaha kings, na never, cha also, eva certainly, na not like that, bhavishyamah shall exist, sarve all of us, vayam we, atah param hereafter. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Purport by Srila Prabhupada. In the Vedas, in the Katha Upanishad as well as in the Shvetashvatar Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities in terms of their different situations according to individual work and reaction of work. That Supreme Personality of Godhead is also, by His plenary portions, alive in the heart of every living entity. Only saintly person who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahunam yo vidudati kaman tam atmastham ye anupashyanti dhiras tesham shanti shashvati netaresham. The same Vedic truth given to Arjuna is given to all persons in the world who pose themselves as very learned but factually have put a poor fund of knowledge. The Lord says clearly that He Himself, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their condition as well as in their liberated situations. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Individual Person, and Arjuna, the Lord's eternal associate, and all the kings assembled there are individual, eternal persons. It is not that they did not exist as individual in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation for anyone. The Mayavadi theory that after liberation the individual soul, separated by the covering of Maya or illusion, will merge into the impersonal Brahman and lose its individual existence is not supported herein by the Lord Krishna, the Supreme Authority. Nor is the theory that we only think of individuality in the conditioned state supported herein. Krishna clearly says herein that in the future also the individuality of the Lord and others, as it is confirmed in the Upanishad, will continue eternally. This statement of Krishna is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. If individuality is not a fact, then Krishna would not have stressed it so much, even for the future. The Mayavadi may argue that the individuality spoken of by Krishna is not spiritual but material. Even accepting the argument that the individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirms his individuality in the past and confirms his individuality in the future also. He has confirmed his individuality in many ways, and impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. Krishna has maintained spiritual individuality all along. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture.
A common man with all four defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is above such literature. No mundane book compares with the Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. The Mayavadi argues that the plurality mentioned in this verse is conventional and that it refers to the body. But previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of the living entities, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? Therefore, individuality is maintained on spiritual grounds and is thus confirmed by great acharyas like Ramanuja and others. It is clearly mentioned in the many places in the Gita that this spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. Those who are envious of Krishna as the Supreme Personality of Godhead have no bona fide access to the great literature. The non-devotee's approach to the teachings of the Gita is something like bees licking on a bottle of honey. One cannot have a taste of honey unless one opens the bottle. Similarly, the mysticism of Bhagavad Gita can be understood only by devotees and no one else can taste it, as it is stated in the 4th chapter of the book. Nor can the Gita be touched by person who envy the very existence of the Lord. Therefore, the Mayavadi explanation of Gita is a most misleading presentation of the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentations made by Mayavadis and warns that one who takes to such an understanding of Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of Gita. If individuality refers to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of the individual soul and of the Lord is an eternal fact, and it is confirmed by the Vedas as above mentioned. ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे पहले वाले वर्ष में हमने देखा था कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार करा, उनके गुरु बने और शिष्य स्वीकार करने के बाद उन्होंने उनको चेस्टाइज करा, उनको बोला कि तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो लेकिन हो तुम वास्तव में मूर्ख। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में जो पंडित होता है वो समदृष्टि वाला होता है, वो आत्मा और परमात्मा को देखता है, वो शरीर के लिए शोक नहीं करता। तो जिस प्रकार तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, अपने बंधुओं के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, तो पंडित के ये लक्षण नहीं है। भगवद गीता में आगे बोला गया है, शुनि चेव शोपाके चाहे पंडिता समदर्शिना। मतलब जो गाय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल प्रजाति का व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसमें भी आत्मा और परमात्मा को जो देखता है वास्तव में वही पंडित होता है। तो अर्जुन जो है वो शोक कर रहा था शारीरिक लेवल पर, लेकिन वास्तव में जो पंडित होता है वो शारीरिक लेवल पर शोक नहीं करता, उसकी दृष्टि आत्मा और परमात्मा पर रहती है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं, ना तुम वे हम जातु नासम, ना तुम नेमे जनाधिपहा, न चेव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं ना रहा हूँ, जब हे अर्जुन तुम ना रहे हो और जितने भी राजा या तुम्हारे जितने भी रिलेटिव्स यहाँ पे इकट्ठे हों वो ना रहे हों, तो हमारा भविष्य में भी एग्जिस्टेंस रहेगा, प्रेजेंट में भी हम एग्जिस्ट रहेंगे और पास्ट में भी हम एग्जिस्ट थे। तो ऐसा कोई समय नहीं है जब भी हमने अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करी हो। जो मायावादी फिलोसोफर होते हैं, जो मायावादी का मतलब होता है जो निराकार को मानते हैं, जो मानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, हम भी निराकार हैं और मुक्ति के बाद हमारी जो ज्योति है परमेश्वर में लीन हो जाती है और हम परमेश्वर बन जाते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ऐसे इम्पर्सनलिस्ट या ऐसे निराकारवादियों को साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी हर जगह पे मौजूद रहती है, हर समय पे मौजूद रहती है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। अभी हम प्रेजेंट में देखें तो हम इंडिविजुअल हैं और यही इंडिविजुअलिटी फ्यूचर में, चाहे हम भौतिक जगत में हो चाहे हम आध्यात्मिक जगत में हो, वहाँ पर भी रहती है। हम कभी भी परमात्मा से एक तरह से एक नहीं हो सकते। परमात्मा परमात्मा है और हम आत्मा आत्मा है।
वे विभु हैं, हम अणु हैं। क्वालिटेटिवली हम जो है सेम हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम अलग अलग हैं। क्वालिटेटिव मतलब होता है हम क्वालिटी में भगवान जैसे ही हैं। जैसे एक सोने का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और एक सोने की बड़ी खान होती है, तो जो एक खान जो है, बड़ी सारी खान, वो परमेश्वर हैं, और एक छोटा सा सोने का जो तिनका होता है वो हम लोग हैं। तो है तो वो भी सोना ही, क्वालिटी सेम है, ये भी सोना है, वो भी सोना है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी में रहता है। इसलिए आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। जो मायावादी बोलते हैं नर नारायणा, मतलब हर नर नारायण है, ऐसा नहीं होता है। जो श्वेताश्वतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद में भी लिखा है, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, मतलब समान वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक नहीं दो पक्षी बैठे हैं। एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा क्या करती है, वो भोगती है, भोगने के लिए वो इच्छाएं पैदा करती है, और वो इस शरीर का इस्तेमाल करती है अपने विषयों को भोगने के लिए। और जो परमात्मा है वो इस तरह से उसकी एक तरह से दृष्टि रखते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, वो क्या कर रही है क्या नहीं, के साक्षी के रूप में उसकी वहाँ पे रहते हैं। इसलिए वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, आत्मा और परमात्मा। वहाँ पे भी इंडिविजुअलिटी मेंटेन है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। इसलिए हम यदि अपने आप को परमात्मा समझेंगे, परमेश्वर समझेंगे, तो हम सबसे बड़ी भूल करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावादी भाष्य सुन ले होए ले सर्वनाश। इसलिए जो भौतिक, जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मायावादी द्वारा जो गीता का भाष्य है वो कभी नहीं पढ़ना चाहिए। गीता का जो समझना, गीता को वही समझ सकता है जो श्री कृष्ण का भक्त हो, श्रद्धा हो। जैसे भगवद गीता में स्वयं लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वही इस ज्ञान को पा सकता है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता, जो श्री कृष्ण को एक ऑर्डिनरी पर्सन मानता है, मानुष्यम तनुमाश्रितम अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वही समझते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका जो विग्रह है वो सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादिर गोविंदा सच्चिदानंद विग्रह। जो श्री कृष्ण का विग्रह है वो सच्चिदानंद विग्रह है, सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। हमारा जो विग्रह है, हमारा जो ये भौतिक शरीर है, इसका अपोजिट है। ये असत्य है, मतलब इटर्नल, ये नश्वर है, कभी ना कभी इसका ख़त्म होगा ही होगा। और ये कहते हैं चित्त फिल ऑफ नॉलेज नहीं है, अज्ञान से भरा पड़ा है। तीसरी बात आनंद, इसमें आनंद नहीं है, ये निरानंद है। तो ऐसे शरीर के तरह से एक्सपीरियंस जब लेता है एक मायावादी जो होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने शरीर के एक तरह से नेगेटिव एक्सपीरियंस लिया होता है। उनको पता रहता है ये शरीर कष्टदायक है, और जो कष्टदायक चीज़ है वो उसको त्यागते चले जाते हैं। तो इनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि एक सच्चिदानंद भी विग्रह है, और सच्चिदानंद विग्रह जो होता है वो कभी भी एक तरह से बूढ़ा नहीं होता। जो चार प्रकार के जो दुख होते हैं वो उसको सताते नहीं हैं। तो वास्तव में मुक्ति वो होती है, जो निराकार वाली जो मुक्ति होती है, जो लीन वाली जो मुक्ति होती है, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्तियाँ पाई जाती है। सायुज्य मुक्ति वो होती है जिसमें जो लीन परमेश्वर की आत्मा जो है परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाती है, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। श्रीमद् भागवत में वर्ष आता है, ये अन्य अरविंद दाक्षय विमुक्ति मानिनस आरूढ़ किच्छेन परम पदम यथा पतंति अधः। मतलब जो लोग भगवान के चरणारविंद का सहारा नहीं लेते, जो भगवान के जो पर्सनैलिटी का सहारा नहीं लेते, वो जो निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं या हो जाते हैं, वो अपने आप को मुक्त मानते हैं, विमुक्ति मानी ना, लेकिन वास्तव में वो मुक्त नहीं होते और उनका पतन कभी भी हो सकता है, पतंती अधः। जो श्री कृष्ण के चरणारविंद का जिसने सहारा नहीं लिया है, श्री कृष्ण के चरणारविंद के जिसकी शेल्टर नहीं है, वो चाहे अपने आप को मुक्त मान भी ले तो भी वो एक तरह से कभी भी अपने जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन होने के बाद भी वहाँ से भी पुनः इस धरती पर गिर सकता है या कहीं भी किसी भी मृत्यु लोक में दोबारा आ सकता है। इसलिए सायुज्य मुक्ति एक तरह से वास्तविक मुक्ति नहीं है। और जो 4 प्रकार की अन्य जो मुक्तियाँ हैं उसमें होता है, एक तो सालोक्य, भगवान के जो लोक है उसमें वास मिलता है, सारूप्य, हमें ऐसा ही शरीर प्राप्त होता है जैसा भगवान के पास है, सच्चिदानंद विग्रह जिसमें सत्य है, इटर्नल है, जो कभी मरता नहीं है, आनंद से परिपूर्ण है और फुल ऑफ नॉलेज होता है, इसको बोलते हैं सारूप्य, सालोक्य, सारिष्टि। भगवान के जितने भी ऑप्युलेंसेस हैं उससे परिपूर्ण हमें एक शरीर मिलता है, उसको बोलते हैं सारिष्टि। तो इस प्रकार जो है 5 प्रकार की है एक तरह से मुक्ति है। और ऐसी मुक्ति में जो सायुज्य मुक्ति है वो वास्तविक मुक्ति नहीं है, उसमें कभी भी हमारा पतन हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी सदैव रहती है, पास्ट में भी है,
प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। ऐसा ही एक श्लोक कठोपनिषद में भी पाया जाता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान तेषाम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरस तेषाम शांतिम शाश्वती अनतेशरेशा। मतलब एक जो परमात्मा जो है वो सबके हृदय में विद्यमान है, और वो जितनी भी आत्माएं हैं, इतनी सारी जो आत्मा है, अनंत कोटि आत्माएं हैं, उन सब के साथ उनके हृदय में विद्यमान है। और उनको वो क्या करते हैं, वो आत्मा तो है अपनी इच्छाएं पैदा करती है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, और परमात्मा क्या करते हैं, उन सबके काम को, उनकी सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो जिसकी अपन जैसी इच्छाएं करेंगे उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही होते हैं। इसलिए जो भगवान बताते हैं कि हर कोई इंडिविजुअल आपको इस संसार में एक सा नहीं दिखेगा, सब डिफरेंट है, क्योंकि सबके कर्म फल अलग अलग हैं। कहीं कहीं पे पैदा होता है, कोई कहीं पे पैदा होता है, अपने कर्म फलों के अनुसार। और वो कर्म फल कौन डिसाइड करता है, जो सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं। दो वृक्ष के अंदर जो दूसरा वाला जो पंछी है परमात्मा, जो इंडिविजुअल है, आत्मा भी इंडिविजुअल है। जो परमात्मा जो पंछी वो सदैव देखता रहता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं, और सारा जो एक तरह से पच्चा चिट्ठा उनके पास पड़ा हुआ है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, और उसी के अनुसार उसको वो फल देते हैं। तो ऐसा नहीं है परमेश्वर जो है एक तरह से मतलब इनइक्वलिटी करते हैं या फिर कोई की पार्शियलिटी करते हैं। सबके अपने अपने कर्म फल होते हैं। परमेश्वर को पता है इसने क्या कर्म करा है, पिछले जन्म में इसने क्या करा है, अभी ये वो क्या कर रहा है, और जो भी वो कर रहा है उसके अनुसार उनको वो फल प्रदान करते हैं। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर को अपने आए जीवन में कष्टों के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दोषी हम स्वयं होते हैं अपने कष्टों को पाने के लिए, क्योंकि हमारे कर्म फल ऐसे होते हैं। यदि हम अपने कर्म फलों को हटाकर परमेश्वर की भक्ति में लग जाएं, तो हमारे जितने भी पाप पुण्य हैं सब जल के भस्म हो जाते हैं, और हमें परमेश्वर की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और शुद्ध भक्ति यदि हमें इस जीवन में रहते मनुष्य जीवन में प्राप्त हो जाती है, तो हमारे मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, जो आत्मा और परमात्मा को देखता है, अनुपश्यन्ति धीरस, कैसे देख पाएगा, जब वो धीर होगा। धीर मतलब स्टेबल, जिसका मन स्टेबल रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। तो ऐसी स्टेज में आने पर मद भक्ति लभते पराम, उसको भक्ति मिलती जाती है, उसको भक्ति दी जाती है, और परमात्मा उनको दर्शन देते हैं। क्यों? धीर होना बहुत जरूरी है। बिना धीर हुए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इवन हम प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, उसमें भी धीर होना बहुत आवश्यक है। अगर हमने धैर्य खो दिया तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धैर्य से ही परमेश्वर को देखा जा सकता है, परमेश्वर के टच में आ जा सकता है। और अगर जितना हम धीर होंगे उतने परमेश्वर के टच में आएंगे, और जितना हम परमेश्वर के टच में आएंगे उतने हम शुद्ध होते चले जाएंगे। फिर हमारा प्रचार हो, चाहे हमारा कोई सी भी एक्टिविटी हो, डिवोशनल एक्टिविटी, कोई सी भक्ति का कार्य हो, वो एक तरह से हमें शांति की तरफ लेते हुए चले जाता है। शांतिम शाश्वती, और कैसी शांति? जो हमेशा रहती है, इटर्नल रहती है, इटर्नल पीस हमको मिलती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसी शांति की प्राप्ति के लिए हमें परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, परमेश्वर की भक्ति में लगना पड़ेगा, और इस तरह हम परमेश्वर को देख सकेंगे। अब जिस तरह से क्या होता है, एक इंजीनियर होता है, तो जब कार ख़राब होती है तो इंजीनियर की दृष्टि दूसरी होती है, हमारी दृष्टि दूसरी होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारी नॉलेज होती है उस कार की मैकेनिक्स में, कौन सा इंजन कहाँ जा रहा है, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, तो उसकी दृष्टि अलग है, और एक कॉमन जो लेमैन है उसकी दृष्टि अलग होगी। ऐसे ही जो वास्तव में पंडित होता है, धीर होता है, उसकी दृष्टि में जो परमात्मा सदैव विद्यमान रहते हैं, और जब परमात्मा उसकी दृष्टि में विद्यमान रहेंगे तो शांति अवश्य मिलेगी, और वही वास्तव में शांति को प्राप्त होता है। न काम कामी, जो काम है वो काम जो इच्छाएं पैदा करता है, जिसमें डिज़ायर होती है बहुत सारी, वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इंडिविजुअलिटी सदैव रहती है, आत्मा और परमात्मा दोनों के रूप में। ऐसा नहीं कि हम परमात्मा में कभी लीन होकर अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। और वायदा वे जो निराकारवादी हैं वो लीन हो भी जाते हैं तो पतंती अदा है, उनका दोबारा से इस भौतिक जगत में पतन हो जाता है, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणार विंद का सहारा नहीं लिया, और बिना भगवान के चरणार विंद के सहारे लिया जो मुक्ति होती है वो वास्तव में मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति मानी ना, मुक्ति मान लेते हैं वो लोग, वास्तव में वो लोग मुक्त नहीं होते हैं। इसके विपरीत जो भक्त होते हैं, जो सदैव श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए होते हैं, वो भले ही हमें मुक्त ना लगें, लेकिन अंदर से उनके जो हृदय में भगवान की कृपा से वो मुक्त रहते हैं। तो इसका एक उदाहरण हम पांडवों से ले सकते हैं। अगर हम बाहरी तौर से देखें, एक्सटर्नली देखें, तो पांडवों का जो जीवन था वो पूर्णतः कष्टदायक था। हर तरह से कष्ट ही कष्ट थे उनके जीवन के अंदर। लेकिन हम जब कुंती देवी की प्रेयर सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ये कष्ट हमारे जीवन में सदैव बने रहें। क्यों? क्योंकि इन कष्टों के कारण हमें श्री कृष्ण का स्मरण होता है।
तो श्री कृष्ण के स्मरण में जो आनंद आता है वो कष्टों को भी आनंदमय बना देता है। इसके विपरीत जो सुखी जीवन है जिसमें श्री कृष्ण का स्मरण नहीं है वो हमें जहर के समान लगता है। तो ऐसा क्या होता है कि जो भक्त जो होता है वो भले ही हमें भारी रूप से लगे कि कष्टों से भरा पड़ा है, लेकिन उसका हृदय क्योंकि उसने श्री कृष्ण के चरणारविंद का सहारा ले रखा है तो उसका पतन नहीं होता। इसके विपरीत यदि कोई सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गया लेकिन श्री कृष्ण के चरणारविंद का सहारा नहीं लिया है, उनके भक्तों के चरणारविंदों का सहारा नहीं लिया है, तो उसका पतन कभी भी वहाँ से हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति को उत्तम माना गया है। और श्री कृष्ण में इंडिविजुअलिटी, जो भक्ति में इंडिविजुअलिटी सदैव रहती है भक्त और भगवान के बीच में। भक्त भक्त होता है, भगवान भगवान होते हैं। भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन हाँ कभी कभार भगवान से ऊपर, जैसे यशोदा मैया है, वो भगवान कभी कभार भगवान की इच्छा होती है कि कोई उनको डांटे, कोई उनको पीटे, तो यशोदा मैया की एक भगवान से भी ऊपर पोजीशन हो जाती है, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं होते। एक तरह से भगवान, हम कभी भगवान नहीं बन सकते, हम आत्मा हैं। हाँ, भगवान के थ्रू हम भगवान की कृपा का पात्र बन के, भगवान हमें ऐसा मौका कभी कभार दे सकता है एज ए सेवा के रूप में कि हम उनके वात्सल्य भाव में या कभी माधुर्य भाव में, कभी सखा भाव में हम उनकी सेवा करें। तो इंडिविजुअलिटी सदैव रहती है, इंडिविजुअलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो भगवान का आकार है, और जैसे इसमें भी लिखा है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो भगवान के 3 फीचर हैं। एक तो भ्रमण, इम्पर्सनल भ्रमण, जो भगवान की आभा जो निकलती है वो भ्रमण ज्योति होती है, और उसी ज्योति में जो निराकारवादी होते हैं वो लीन होते हैं, उसी में मिक्स हो जाते हैं, और वहाँ से दोबारा भगवान के चरणारविंद का अगर वो सहारा नहीं लेते हैं तो वहाँ से दोबारा गिर जाते हैं। तो दूसरा होता है भगवान परमात्मा के रूप में, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे अनुदृष्टा के रूप में रहते हैं, हर किसी के हृदय के रूप में, हर किसी का एक तरह से जैसे रिकॉर्ड वो मेंटेन रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम एको यो बहुनाम विदधाति कामान, मतलब उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण भी भगवान ही करते हैं। तो वो सदैव हमारे हृदय में रूप में विद्यमान है, परमात्मा के रूप में, एक अंश है भगवान का, परमात्मा उसके रूप में विद्यमान है। और भगवान इति शब्द थे, इसके बाद हम जब जाएंगे तो भगवान का एक साक्षात्कार होता है, तो वो एक तरह से अल्टीमेट है, लास्ट है, तो सर्वोच्च उसमें सच्चिदानंद विग्रह हमको मिलता है, और सदैव हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। इवन इस भौतिक शरीर को भी हम भगवान की सेवा में यदि लगा देते हैं तो ये शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है, सच्चिदानंद हो जाता है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उनको भारी रूप से हमें देखे कि कष्टदायक है, लेकिन वास्तव में वो मुक्त माने जाते हैं, वो संसार में रहते हुए भी मुक्त हैं। और इसके विपरीत जो निराकारवादी हैं वो संसार में त्यागने के बाद, ज्योति में मिलने के बाद भी मुक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी पे विशेष ध्यान दिया गया है, बताया गया है कि जो आत्मा है और परमात्मा है अलग अलग हैं, दोनों का पर्सनल फीचर है, और ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्योति सब कुछ है, ब्रह्म ज्योति के आगे परमात्मा है, परमात्मा के आगे भगवान का हमें एक तरह से साक्षात्कार होता है। इसलिए जो वास्तविक भक्त होता है ना तो वो निराकारवादी से द्वेष करेगा, और साकारवादी से द्वेष का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो निराकारवादी जो है उनके लिए वो सोचता है कभी ना कभी जाके परमेश्वर के चरणारविंद के पास आएगा ही आएगा। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, क्योंकि ये ज्ञान का है, लेकिन इसमें एक तरह से सत्य और आनंद का अभाव रहता है। सायुज्य मुक्ति में सत्य और आनंद के अभाव के कारण वो दोबारा से उनका पतन होता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वतः। मतलब जितने भी रास्ते आध्यात्मिक राह में जा रहे हैं वो कुल मिला के श्री कृष्ण की तरफ ही जा रहे हैं। धीरे धीरे करके वो श्री कृष्ण तक पहुंच जाते हैं। इसलिए निराकारवादी से द्वेष ना करते हुए, हाँ लेकिन उनके भाष्य कभी नहीं सुनना चाहिए जो साकारवादी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली मना करा है, मायावादी भाष्य सुन ले होइले सर्वनाश। क्योंकि भगवद गीता को समझने के लिए, भगवद गीता को जानने के लिए कौन समझ सकता है भगवद गीता के मिस्टिज्म को, जैसा पर्वत में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, वही समझ सकता है जो एक भक्त होता है। एक भक्ति समझ सकता है इस भगवद गीता के रहस्य को। और जब तक भक्त के मुख से हम ये भगवद गीता नहीं सुनेंगे तब तक हम इस भगवद गीता के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं जो भगवद गीता खोल खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं बोल देते हैं, उनको भी पढ़ाने के लिए बोल देते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। जो मूर्ख हैं, जो कड़े मूर्ख हैं, वो लोग भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं। वो समझते हैं कि श्री कृष्ण का जो शरीर है वो हमारे जैसा ही है, लेकिन ये सत्य नहीं है। श्री कृष्ण का जो विग्रह है वो सच्चिदानंद विग्रह है, और हमारा जो शरीर है वो इसका जस्ट विपरीत है। तो निराकारवादी के एक तरह से कष्टदायक जो एक्सपीरियंस होता है इस शरीर का,
इसलिए वो शरीर को त्यागते हैं और निराकार की ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, वहाँ से पतन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है जो श्री कृष्ण है वो 4 काइंड ऑफ डिफेक्ट से मुक्त हैं और भगवान वास्तव में कोई डिफेक्ट हो भी नहीं सकता। ये डिफेक्ट हमारे अंदर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से 4 डिफेक्ट हैं? वो है इल्यूज़न। हम इल्यूज़न होते हैं, हम किसी चीज़ को कुछ और होता है उसको कुछ और समझते हैं, तो हम इल्यूज़न में रह सकते हैं। हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। हमारे इम्परफेक्ट मतलब हम किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंड हैं। अगर वो चीज़ डिपेंडेंस हमारे, जैसे मान लीजिए कि लाइट, सनलाइट की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है हमारी आँखों को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं होगी तो हम देख नहीं सकते। ऐसे ही हमारे जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हमारे वातावरण के आसपास मौजूद हैं जिनको हम देख नहीं पाते, वो रिसेप्टर्स हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे सेंसेस जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं। और तीसरा है मिस्टेक। हम गलती करते हैं। टू अर्र इज़ अ ह्यूमन। हमारे पास गलती करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन भगवान कभी गलती नहीं करते। परमेश्वर परफेक्ट हैं, उनके सेंसेस परफेक्ट हैं, तो वो गलती करने के चांसेस भी नहीं हैं। चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हमारे अंदर प्रोपेंसिटी धोखा देने की, लोगों को किसी ना किसी को हम धोखा देते हैं। हम कोई चीज़ जानते ही नहीं लेकिन उसको बताने का प्रयास करते हैं, तो एक तरह से चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। तो हम सब इन 4 चीज़ों से ग्रस्त हैं, लेकिन भगवान इन 4 चीज़ों से ग्रस्त नहीं है। इसलिए भगवान की जो नॉलेज आ रही है वो परफेक्ट है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो किसी गज़ेट के बारे में नहीं जानता है, तो कोई इंजीनियर होता है, उसको सारी चीज़ें बताता है, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और वो उसको बोलता है। वो किसी दूसरे को बताएगा, भले ही वो उस चीज़ के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन वो उसने एक इंजीनियर से वो चीज़ पूछी है और वो दूसरे को बता रहा है, वो एज इट इज़ बता रहा है, तो वो चीज़ सही नॉलेज, सही एक तरह से मैसेज तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण की गुरु परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं और उनसे जो शिष्य हैं, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, वो तो नित्य मुक्त हैं, वो सदैव से श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए रहते हैं। लेकिन उनसे जो शिष्य हैं, हम एज इट इज़ अगर कृष्णा जो बताना चाह रहे हैं एज इट इज़ हम बता रहे हैं, तो वो जो नॉलेज जा रही है वो परफेक्ट जा रही है। लेकिन यदि हम अपने इम्परफेक्ट सेंसेस का इस्तेमाल करके कुछ इसमें एडिट कर देते हैं, तो वो जो परफेक्ट नॉलेज जो जा रही है उसका विखंडन हो जाता है, वो टूट जाती है। इसलिए बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये परंपरा सिस्टम जब जब टूटी है तब तब श्री कृष्ण आते हैं या स्वयं श्री कृष्ण का कोई दूत आता है जो इस परंपरा को एज इट इज़ कंटिन्यू करता है। जैसे 500 साल पहले चैतन्य श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वहाँ से गुरु जो श्रृंखला है वो चलती आ रही है श्रील प्रभुपाद तक। तो श्री कृष्ण का जो विशुद्ध ज्ञान है वो तुरंत इस गुरु परंपरा से आ रहा है। तो यदि कोई इस परंपरा के टच में आता है और एज इट इज़ जो बता रहा है, भले ही उसके सेंसेस इम्परफेक्ट हो, भले ही वो मिस्टेक करता हो, भले ही वो एरर हो, लेकिन वो जो मैसेज जो बता रहा है वो एज इट इज़ बता रहा है, तो वो मैसेज एकदम से शुद्ध रूप में जो सुनने वाले के पास पहुंचता है और उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। तो आज का लाइव गीता मैसेज यही है कि हमें भगवद गीता का जो मैसेज है वो हर किसी के मुख से नहीं सुनना चाहिए। हमें भगवद गीता का मैसेज कोई प्रमाणिक परंपरा में कोई गुरु आ रहा है उसी से सुनना चाहिए, या भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, उनके मुख से ही सुनना चाहिए। और जो अपने आप को जैसे टीचर बनाते हैं या फिर कोई अपने आप को बड़ा बड़ा स्कॉलर बताता है, और जब कोई मायावादी फिलोसोफर होता है वो भगवद गीता का भाष्य बताते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भगवान ने एक स्ट्रेंथ, एक महापुरुष के रूप में बताएंगे, श्री कृष्ण को बताएंगे ये ऐसे थे, ये ऐसे थे। तो हमें ऐसे लोगों के मुख से यदि हम भाष्य सुन लेते हैं भगवद गीता का, तो हम उस एसेंस तक, उस रहस्य तक, उस मिस्ट्री तक नहीं पहुंच सकते जिस कारण से भगवद गीता बताई गई है। भगवद गीता को समझने के लिए, भगवद गीता को एक तरह से अपने अंतर ध्यान में उतारने के लिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाना ही पड़ेगा और शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना पड़ेगा। और जो मायावादी फिलोसोफर है, हमें उसके मुख से भगवद गीता कभी भी नहीं सुननी चाहिए। ऐसा सुनकर हम अर्थ का अनर्थ निकालेंगे और जो भगवद गीता का जो वास्तविक मूल, जो एक तरह से कारण से बोली गई थी, जो मैसेज था, वो टूट जाता है और ऐसे में भगवद गीता को सुनने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और तीसरा यहाँ पे है कि जो भगवान के 3 फीचर हैं, ब्रह्मण, परमात्मा और भगवान। तो सायुज्य जो मुक्ति होती है वो वास्तव में मुक्ति नहीं होती है। अपने आप को परमेश्वर में लीन कर लेना और अपने आप को परमेश्वर बता देना वास्तव में बहुत बड़ी मूर्खता है। हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर नहीं बन सकते। श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भी थे मौजूद हमेशा, और अर्जुन तुम भी थे। मतलब ये नहीं बोल रहे कि तुम भगवान बन गए थे या मैं आत्मा बन गया था, ऐसा नहीं। मैं परमेश्वर के रूप में सदैव विद्यमान था और तुम आत्मा के रूप में सदैव विद्यमान रहोगे। मैं परमात्मा के रूप में, तुम आत्मा के रूप में। हम कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। हमें इस चीज़ फैक्ट को समझना होगा।
भगवान सदैव से भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे तो मात्र, और हम ये एटलीस्ट हमें इसको एक से मलेच्छ दृष्टि से ना देख के स्पष्ट दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र आज भी मौजूद है, मथुरा वृंदावन सब जगह आज भी मौजूद हैं। और देखा जाए श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं बताई गई हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, तो सारी लीलाएं भगवान बताते हैं कि वो भगवान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरा यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान के 3 जो फीचर होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। तो धीरे धीरे करके जो भ्रमण में जो लीन हो रहा है, यदि वो भगवान के चरणारविंद का सहारा नहीं लेगा तो वो अपनी जो है एक तरह से आध्यात्मिक प्रगति से दोबारा से नीचे गिरने के उसके चांसेस रहते हैं। इसके विपरीत यदि कोई भगवान का शुद्ध भक्त है और भौतिक क्रियाकलापों में लीन है, लेकिन उसने भगवान के चरणारविंद का सहारा ले रखा है, तो उसके पतन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पतन होगा तभी होगा जब वो चरणारविंद का सहारा उससे छूटेगा। अगर उसने भगवान के चरणारविंद का सहारा पकड़ रखा है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन के अंदर, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आ जाए जीवन के अंदर, जैसे पांडवों के साथ हुआ था, तो उनका पतन कभी भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति से कभी भी नहीं होता है। इसलिए हमें भगवान के चरणारविंद को पकड़ना चाहिए। भगवान के जो साकार विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है, उसके एक तरह से आकृष्ट होना चाहिए। इसके यदि हम भगवान के विग्रह से, भगवान के अर्च विग्रह को अपने विग्रह जैसा समझेंगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे और हम अपनी खुद की प्रगति में एक तरह से बाधा बन जाएंगे। तो बताया गया है, मायावादी के लिए बताया गया, मायावादी लोग वो होते हैं जो लोग भगवान का निराकार रूप को मानते हैं, लेकिन निराकार रूप है, भगवान की ब्रह्म ज्योति है, एग्जिस्ट, ऐसा नहीं बोल रहे कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्योति सब कुछ नहीं, ब्रह्म ज्योति के आगे और भी बहुत आनंद भरा पड़ा है। इसलिए जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पे ना रुकते और आगे बढ़ना चाहिए, तो इसके बाद परमात्मा और भगवान तक वो पहुँच पाएंगे। और जब भगवान तक पहुँच गए, वही चरम लक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति का। जिसने भगवान के चरणारविंद का सहारा जिसको मिल चुका है, तो समझ ली वो परम पद तक पहले ही पहुँच चुका है, वो एकदम से हाईएस्ट पोजीशन पे है। इसलिए हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए जब तक हमें भगवान के चरणारविंद का सहारा नहीं मिल जाता। हरे कृष्ण। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज का जो भजन है वो आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है, और ये जो भजन है, आज का जो भजन है वो आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है, और आदि शंकराचार्य से बड़ी अथॉरिटी इम्पर्सनलिज्म में कोई भी नहीं है। इसलिए वो स्वयं भी बोल रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, मतलब गोविंद का नाम लो, उनका नाम जपो, उनका भजन करो, कीर्तन करो, और इसी से तुम एक तरह से सदगति को प्राप्त होगे, खासकर इस कलयुग के अंदर। तो इसी भाव को लेते ये भजन प्रस्तुत है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम।
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकुलकर्णे भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भज गोविन्दम यावद्वित्तोपार्जनसक्ताः तावत् निज परिवारो रक्ताः पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे भज गोविन्दम बालस्तावद् क्रीडासक्तः तरुणस्तावद् तरुणीरक्ता वृद्धस्तावद् चिन्तासक्तः परब्रह्मणि कोऽपि नासक्तः भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भज गोविन्दम दिन्यामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायात कालः क्रीडति गच्छत् आयु तदपि न मुञ्चत् आशावायु भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भज गोविन्दम जटिलो मुण्डी लुञ्जित केशः काषायाम्बर बहुकुतवेष पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्तमा बहुकुतवेष भज गोविन्दम अग्रे वहनि पृष्ठे भानुं रातो दिन को समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतलवासा तदपि न मुञ्चत् आशा पाशा भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम गज मूढमते भगवत गीता किञ्चित् धीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदयेन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य न करते चर्चा भज गोविन्दम पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननि जठरे शयनं इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम गीता
नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपतिरूपमजस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम ध्येयम दीनजनाय च वेतम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम प्राणायामं प्रत्याहारं नित्य नित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं कुर्ववधानं महदवधानं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणाद अन्य उपायं नहि पश्यामि भवतरणे नाम स्मरणाद अन्य उपायं नहि पश्यामि भवतरणे नाम स्मरणाद अन्य उपायं नहि पश्यामि भवतरणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम। हरे कृष्ण। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता है। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवा अवस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। बड़ी जटाएं, केश रहित सर, बिखरे बाल, काशाएं वस्त्र और भांति भांति के वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी क्यों नहीं देख पाते हो? सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सर छुपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता है। जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो। सज्जनों के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों की अपने धन से सेवा करो। प्राणायाम, उचित आहार, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करो। प्रेम से प्रभु नाम का जाप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण।